جائیدادوں کے پراپرٹی ٹیکس میں ریلیف کے منتظر شہریوں کے لیے بری خبر ہے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے عوامی دباؤ پر 1 اکتوبر کو آن لائن سسٹم اپ گریڈیشن کے نام پر بند کیا، مگر ٹیکسوں میں کمی کے بغیر ہی سسٹم دوبارہ چلا دیا گیا اور نئی شرح سے ٹیکسوں کے چالان جاری کرنا شروع کر دیے۔ فیصل آباد سے عمیر عصمت کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے مالی سال 2021-22 کے آغاز پر ٹیکس گزاروں کو 7 سال سے ملنے والا ریلیف ختم کر دیا، جس سے ہزاروں جائیدادوں کے ٹیکسوں میں 100% تک اضافہ ہوگا۔ ذاتی استعمال کی کمرشل جائیداد کے ٹیکس میں 60% اضافہ کر دیا۔ عوامی رد عمل پر ٹیکس میں کمی کا اعلان کر کے کمیٹی قائم کی گئی۔ 1 اکتوبر کو سسٹم اپ گریڈیشن کے لیے بند کیا گیا اور 6 روز بعد بغیر کسی رد و بدل کے بحال کر کے نئے ٹیکسز کا ہی اطلاع کیا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں حکومت سے ریلیف کی امید نہیں۔ جو غریب آدمی یہ راستے مر جائے گا، یہ ٹیکس وغیرہ پے نہیں کر سکتا، یہ اپنے گھر کا نہیں نظام چلا سکتا، تو میرے کہنے کا مطلب یہ جو انسان پیسے وغیرہ کم وغیرہ کریں تو وہ ہم ٹیکس نہیں دے سکتی ہے۔ بس یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کاغذی کارروائی ہے، اس کے آگے کوئی نہیں۔ غریب آدمی کو صرف مارنے کا ہے یہ سوچ رہا اور کچھ نہیں۔ کسی کے گھر کا چولہا چلے نہ چلے، ان کا نظام چلنا چاہیے۔ ایکسائز حکام کہتے ہیں فی الحال نئے ریٹس پر ہی ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ وزیر ایکسائز اور صوبائی وزیر خزانہ معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹیکس گزاروں کو ریلیف ملنے کی امید ہے۔ جہاں تک اب سسٹم کا تعلق ہے، وہ انہوں نے ہر پہلی کو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اپڈیشن میں جو پچھلے بقایا جات رہ گئے، جو پیمنٹس ہو گئی ای پے کے ذریعے ہوئی یا ڈائریکٹ بینک کے ذریعے ہوئی، ان سب کو اپڈیٹ کر کے تو فی الحال نوٹس جو ہے نا وہ پورا ہی نہیں کرا، اس میں ریبیٹ والا پیریڈ یا ٹائم وہ نہیں ہے۔ پراپرٹی ٹیکس میں ریلیف ختم ہونے سے ٹیکسوں میں 100% تک اضافہ ہوا، جسے متاثرہ شہری ظالمانہ اقدام قرار دے رہے ہیں۔ کیمرامین رانا ادریس کے ساتھ عمیر عصمت، فیصل آباد۔ مرمت اور مرمت، آخر کب ختم ہوگی فیسکو ترسیلی نظام کی مرمت؟ نقائص شہر کے لیے درد سر بن گئے۔ نشاط آباد سے نیوٹ روڈ اور جڑامالہ روڈ گریڈ سٹیشنز کے فیڈر خستہ حال ہیں، جہاں پر شہری 8 گھنٹے کی طویل بجلی بندش کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر کے بیشتر فیڈرز پر مرمتی کام کے نام پر بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ناقص ترسیلی نظام شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ شہر کے بڑے گریڈ اسٹیشنز کے بیشتر فیڈرز پر ایک ہفتہ میں 3 بار شٹ ڈاؤن کے نام پر گھنٹوں بجلی بند کی جانے لگی۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر ہونے لگے۔ شہری کہتے ہیں فیسکو مرمتی کام کے نام پر گھنٹوں بجلی بند کر رہا ہے، جس سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ یار اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہتا ہے، کیونکہ لائٹ تو آتی نہیں ہے، اس سے کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اندر بیٹھنے سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ خان صاحب کی حکومت بس کنٹینر پہ تھی، اس کے بعد ان کی حکومت نظر نہیں آئی۔ مکمل تاجر اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ 8 بازاروں میں لائٹ کا حلیہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دن میں کتنی دفعہ کوئی ٹائم نہیں ہے، لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ ادھر فیکٹری ایریا میں صبح بھی جاتی ہے، شام کو بھی جاتی ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اگر کسی واپڈا دفاتر میں اگر جاتے ہیں، کوئی ریپیئرنگ کا سسٹم نہیں ہے۔ فیڈرز کی ٹرپنگ گھنٹوں بجلی بندش کا سبب بن رہی ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا فیسکو ناقص ترسیلی نظام میں بہتری لائے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ سنگل فیز اور کمرشل میٹرز کے خواہش مند صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ فیسکو کی جانب سے نئے 7 لاکھ میٹرز خریدنے کے لیے ٹینڈر کی منظوری دے دی گئی۔ ڈیمانڈ نوٹس کی فیسیں ادا کرنے والوں کو کنیکشن کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ اویس علی کی رپورٹ دیکھیے۔ دینے والے صارفین کے لیے فیسکو نے 7 لاکھ نئے میٹرز خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیسکو کی جانب سے میٹرز کی خریداری کے لیے ٹینڈرز جاری کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن فیسکو طاہر محمود شیخ کا کہنا ہے نئے میٹرز خریدنے کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا۔ ڈیمانڈ نوٹسز کی فیسیں ادا کرنے والے صارفین کو کنیکشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ جو ڈومیسٹک صارفین ہیں اور جو کمرشل صارفین ہیں، سنگل فیز 3 فیز، ان کے لیے سنگل فیز میٹرز کا جو 7 لاکھ میٹرز کا ٹینڈر کیا گیا ہے، جو ابھی فائنل پروسیس میں ہے۔ جناب چیف ایگزیکٹو بشیر احمد صاحب نے اس کی منظوری دی تھی اور جلد ہی وہ میٹر کمپنی کو موصول ہوں گے، اور جتنے ہمارے پینڈنگ ہیں کنیکشن یا کمرشل ہیں یا ڈومیسٹک ہیں، ان پہ ہم انشاءاللہ جلد میٹر لگانا شروع کر دیں گے۔ فیسکو میں نئے میٹرز کب تک سب ڈویژن دفاتر پہنچیں گے، اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔
फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में फंड्स की कमी मसाइल का सबब बनने लगी। मशीनरी की खरीदारी मुश्किल बन गई। नया अमला रखने के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में फंड्स की कमी मसाइल का सबब बनने लगी। नई भर्तियां न होने से शहरी हदूद में शामिल नए इलाके सफाई के अमल से मुस्तफीद न हो सके। कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए। सफाई तो जब हमारे मेहमान शहर से आते हैं तो एक बार ही आते हैं, वो कहते हैं कि आपका इलाका ही बहुत गंदा है, ऐसे वैसे है। तो इन लोगों को चाहिए ना कि जो लोग बाहर फेंक के आते हैं ये बाहर से उठा के इधर ला के फेंक देते हैं, तो हमारे मेहमान भी नहीं आते और हमें भी मुश्किल होती है। तो हम भी शहर से काम करने वाले हैं, हमें भी मुश्किल होती है। तो ये इनको चाहिए कि गंद ये बना इसको कम किया जाए। ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ। शहरी कहते हैं अमला नहीं आता, इर्द गिर्द का कूड़ा भी यहाँ फेंक दिया जाता है जिससे बीमारियां जन्म ले सकती हैं। सारा गंद पिया, बड़ियां बीमारियां फुट रही ने, गरीब आदमी रहिंदे ने, सुनता कोई बंदा नहीं। इन्हां ने वोट भी दिते ने, हुक्मरान अपने अपने मकाम ते बैठे ने, कोई ऐसा काम नहीं गरीब आदमी से मुतलका कर रहे। सीनियर मैनेजर ऑपरेशन से एजाज बंदेशा के मुताबिक फंड्स का लिखा गया है, जो ही बजट वसूली हुई काम शुरू कर दिया जाएगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो मेन रोड्स हैं उसको तो इंटरमिटेंटली हम अटेंड कर रहे हैं। तो फार्मली उस एरिया में सर्विस स्टार्ट करने के लिए हमने उसके ऊपर एक कंप्लीट वर्किंग की है, जिसमें जो एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, जिसमें मैन पावर है, रिक्वायर्ड मैन पावर और मशीनरी, तो वो हमने गवर्नमेंट से बजट में डिमांड की है। तो इंशाल्लाह जो ही वो उसकी अप्रूवल हमें मिल जाती है तो वो जो नए रिसोर्सेज हैं उसमें हम इंशाल्लाह इंडक्ट करके तो फार्मली और इसको जो है फिर हम रेगुलरली इसको टेक ओवर कर लेंगे। शहरी कहते हैं FWMC की नाकामी की वजह से सफाई की सूरत-ए-हाल इंतहाई नाकस हो चुकी है। शहरियों की फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से यही गुजारिश है कि यहाँ पर मरकजी शहर के हिस्सों को छोड़कर जो इतराफ के हिस्से हैं वहाँ पर भी सफाई करने में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। डीपीओ टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक का तबादला एसपी स्टाफ ऑफिसर टू वज़ीर आला पंजाब तैनात कर दिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन टोबा मावरान खान को डीपीओ को इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया है। डीपीओ टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक को तबादला कर दिया गया, जहां पर एसपी इन्वेस्टिगेशन टोबा मावरान खान को डीपीओ टोबा का इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि डीपीओ टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक का तबादला कर दिया गया। एसपी स्टाफ ऑफिसर टू वज़ीर आला पंजाब तैनात कर दिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन टोबा मावरान खान को डीपीओ को इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया है। डीपीओ टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक का तबादला कर दिया गया है। पंजाब की मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। पंजाब भर की 176 एडिशनल सेशन जजेस तब्दील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले जजेस को 12 अक्टूबर तक चार्ज संभालने की हिदायत। पंजाब की मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। पंजाब भर के 176 एडिशनल सेशन जजेस तब्दील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले जजेस को 12 अक्टूबर तक चार्ज संभालने की हिदायत। जफर इकबाल तारड़ का फैसलाबाद से चिश्तियां तबादला। इरफान हैदर का पिंड दादन खान से फैसलाबाद तबादला। मोहम्मद फर्रुख हमीद का गोजरा से जंड तबादला। इम्तियाज नदीम का फैसलाबाद से सियालकोट तबादला। मोहम्मद आमिर मुनीर का जनावाला से फालिया तबादला। मोहम्मद सज्जाद हुसैन खान का मुल्तान से तांदलियावाला तबादला। बासित अलीम का रावलपिंडी से झंग तबादला। मियां जावेद अकरम बट्टू का लाहौर से गुजरा तबादला। शौकत जावेद खान का बुरेवाला से जड़ावाला तबादला। अहमद मुजाहिद शेरदिल चीमा का तांदलियावाला से कसूर तबादला। नदीम अनवर चौधरी का फैसलाबाद से समुंदरी तबादला। चिनौट में समन ग्रुप का महक ग्रुप पर मुबैना तशद्दुद। ख्वाजा सरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। सड़क ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। ख्वाजा सराओं ने कहा कि इंसाफ न मिला तो भरपूर एहतजाज करेंगे। चिनौट में ख्वाजा सराओं के दो ग्रुप आमने सामने आ गए। समन ग्रुप ने महक ग्रुप को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर ख्वाजा सरा डिप्टी कमिश्नर के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। ख्वाजा सराओं ने सड़क ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। नामी ख्वाजा सरा है, ठीक है, जो कि मेरे चेलों को तंग कर रहा है, ठीक है, उसने खुद इनको मारा। रोड के ऊपर वीडियो मौजूद है जो हम एसपी ऑफिस में भी दे चुके हैं, उसके अलावा एसएचओ के पास भी हैं, चौकी इंचार्ज के पास भी हैं। फिर उसने हमारे खिलाफ रेट दायर कर दी है।
कि जी इन्होंने हमारे घर पे फायरिंग की है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट पाकिस्तान महक शाह का कहना था कि समन नामी ख्वाजा सरा ने तशद्दुद किया और गुंडागर्दी की, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि डीपीओ चिन्योट मामले का फौरी नोटिस लें और ऐसे जुराम पेशा अनासर का खात्मा करें। उन्होंने उनसे फायरिंग करवाई, हमारे खिलाफ दरखास्त दे दी। ये झूठा काम तो नहीं चलेगा, हम ऐसा तो नहीं होने देंगे। ख्वाजा सरा बदमाशी कर रहे हैं, ये तो ख्वाजा सरा नहीं, ये तो बंदा है, ये तो बदमाशी कर रहे हैं। डीएसपी और एसएचओ सिटी ने मौका पर पहुंचकर ख्वाजा सराओं को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। ख्वाजा सराओं को कहना था कि अगर हमें इंसाफ न मिला तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। विरासत में हिस्सा मांगना यतीम लड़की को महंगा पड़ गया। चचा ने लड़की के शोहर और मामू को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। मंडी शाहजौना की मुतासर लड़की का रिश्तेदारों के हमरा डीपीओ दफ्तर के बाहर एहतजाज, मुकदमा खारिज करने की अपील कर दी। डीपीओ जंग ने नोटिस लेते हुए तमाम तफसीलात भी तलब कर ली हैं। मंडी शाहजीना की रहायशी यतीम लड़की महविश रबाब ने रिश्तेदारों के हमरा डीपीओ दफ्तर के सामने एहतजाज किया। लड़की का कहना था कि बाप की जायदाद में से हिस्सा मांगने पर चचा ने शौहर और मामू को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। चचा ने थाना कादरपुर में पुलिस से मिलकर मुबैना चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया। मुतासरा खानदान ने बताया कि लड़की के शौहर समेत दीगर रिश्तेदार पुलिस हिरासत में है, जबकि मुदई ने वरासती हिस्सा छोड़ने पर मुकदमा खारिज करने का कहा है। डीपीओ झंग नोटिस लेकर इंसाफ दिलवाएं। झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर इनका जो है शोहर उसको अंदर करवा दिया, इसका जो खाला का मियाँ था उसको भी अंदर करवा, दोनों को इन्होंने अंदर करवा दिया। अपने जायदाद का हक मांगा, अपने बाप की विरासत मांगी। जब ये नंबरदार और चेयरमैन सारे मिली भगत करके इन्होंने 2 नंबरी की है। अपने नाम पर वो जगह जो है जायदाद इंतकाल करवा के बाद में इन्होंने फरोख्त कर दिया। डीपीओ हसन असद अलवी ने मामले का नोटिस लेते हुए तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि मुतासरा खानदान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। पीएनडी कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी पीएनडी बोर्ड मुजाहिद शेरदिल, मेंबरान पीएनडी बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 16 अरब रुपए से 3 करोड़ से ज्यादा फंड्स की मंजूरी दी गई। पीएनडी कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी पीएनडी बोर्ड मुजाहिद शेरदिल, मेंबरान पीएनडी बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स के 11 तरक्याती स्कीमों के लिए 16 अरब 3 करोड़ से ज्यादा फंड्स की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद को साफ पानी की फराहमी के लिए 3 अरब 69 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपए मंजूर कर लिए गए। दूसरी तरफ झंग में भी तरक्याती मंसूबों के साथ साथ सरकारी इमारतों की तज़ीन व आराइश भी होगी। तारीखी डीसी ऑफिस को भी नए सिरे से बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का कमेटी रूम, वेटिंग हॉल और मरकजी दफ्तर नए सिरे से बनेंगे। मीटिंग रूम को बलाई मंजिल पर मुंतकिल किया जाएगा। वेटिंग रूम को बड़ा बनाया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने डीसी ऑफिस के लिए 45 मिलियन रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए। महकमा खजाना ने फौरी तौर पर 20 मिलियन के फंड्स भी तज़ीन व आराइश के लिए जारी कर दिए। अहमदपुर सयाल के असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइशगाह के लिए भी खुसूसी फंड्स मंजूर किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइश के लिए 14.50 मिलियन के फंड्स मंजूर करके जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया का कहना था कि डीसी ऑफिस की जानिब से दोनों मंसूबों की मंजूरी के बाद काम की इजाजत दी गई। चंद दिनों में दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो जाएगा। हाउसिंग बायलॉज पर अमल दरामद करवाने वाली एफडीए खुद ही कारबंद न रही और 1986 में डिजाइन किए गए मिल्लत टाउन में 3 दिहाइयों बाद भी सरकारी स्कूल न बन सका। सेहत की बुनियादी सहूलियात भी नहीं, गलियां टूट गईं, सीवरेज भी बंद हो गया, बेशतर घरों को पीने का साफ पानी भी न मिल सका। ये गलियां और बाजार हैं मिल्लत टाउन के, जहां गलियां टूट गईं, बाजारों में खड्डे ही खड्डे, जबकि सोलिंग भी नहीं लग सका। हाउसिंग बायलॉज के मुताबिक डिस्पेंसरी और स्कूल तामीर होना था, मगर 3 दिहाइयों के बाद भी सहूलियात न मिल सकीं, जिस पर मकीन नाला हैं। सीवरेज और पानी का निज़ाम तो ऐसे है कि मतलब जो पीने वाला पानी है ना, उसमें अक्सर औकात जो है वो सीवरेज वाला पानी मिक्स होकर काला पानी आ रहा होता है घरों में पीने वाला जो पानी है। और सीवरेज का पानी जो निज़ाम है गटरों का, वो अक्सर गटर जो है अक्सर बंद ही रहते हैं। पार्क था, ये पहले बनाने लगे थे, उसको भी रोक दिया, वो भी नहीं बना है। और उसके अलावा हमारे बच्चे, उनको खेलने के लिए भी कोई पार्क नहीं है, कोई किसी जगह नहीं है कि वो वहाँ खेल लें या मसलन के ज़रा वर्जिश वगैरह कर लें। गलियां तो बिल्कुल है ही नहीं है, बल्कि आपने कह सकते हैं कि खड्डे जो एफडीए ने वो आवाम को दिए हुए हैं और उन खड्डों पे लोग इस तरह रह रहे हैं कि कोई ट्रैफिक यहाँ पे नहीं चल सकती, टूटी हुई सड़कें हैं।
कॉलोनी का कमर्शियल एरिया भी सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। ए ब्लॉक समेत कई ब्लॉक्स का सीवरेज भी बंद है। बेशतर घरों में पीने का साफ पानी नहीं मिल सका। डायरेक्टर जनरल FDA डॉक्टर फैसल अजीम कहते हैं, तरक्याती कामों और सफाई की जिम्मेदारी तहसील कौंसिल सदर की है। स्कूल की तामीर और डिस्पेंसरी के लिए भी महकमा सेहत और महकमा तालीम को मुरासला भिजवाया है। पानी और सीवरेज बेसिकली वासा के ज़ेरे इंतज़ाम ये मसाइल हैं, उसके लिए काफ़ी हाई लेवल के ऊपर इस मामले को टेकअप किया गया। डॉक्टर फैसल अजीम ने कहा कि सीवरेज के मसाइल और पानी की फराहमी के लिए वासा को मौसर बनाएंगे। अरबाब इख्तियार ने मिल्लत टाउन के मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी तो करवाई है, मगर अब देखना यह है कि ये मसाइल हकीकी बुनियादों पर कब हल होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड हेल्थ केयर इमरान सिकंदर की फैसलाबाद आमद। सेक्रेटरी हेल्थ इमरान सिकंदर ने जनरल अस्पताल समनाबाद और डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद का दौरा किया। कोरोना, डेंगू और अस्पतालों में तिबी सहूलियात का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इमरान सिकंदर ने फैसलाबाद का दौरा किया। सेक्रेटरी हेल्थ जनरल अस्पताल समनाबाद पहुंचे तो CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा, MS डॉक्टर जुल्करनैन राव व दीगर ऑफिसर्स ने इमरजेंसी मेडिसिन स्टोर, डायलिसिस सेंटर, चिल्ड्रन इमरजेंसी और हेपेटाइटिस क्लब का विजिट करवाया। इस मौका पर सेक्रेटरी हेल्थ इमरान सिकंदर का कहना था, हुकूमत सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। कोरोना से बचाव के लिए 44% लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। तालीमी इदारों में 12 साल से जायद उम्र तलबा को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। हमें जो हुकूमत पाकिस्तान ने टारगेट दिया है वो 12 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद का है, तो तकरीबन 8.25 करोड़ की आबादी बनती है जिसको हमने वैक्सीनेट करना है, और इसका 44% को हम फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। और ये तमाम सूबों में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इस वक्त सूबा पंजाब की है। CEO हेल्थ मुश्ताक सिप्रा का कहना था, फैसलाबाद में हेल्थ की 14 स्कीमों पर काम चल रहा है, जिनके मुकम्मल होने पर सेहत की सहूलियात में मजीद बेहतरी आएगी। हमारी तकरीबन 14 के करीब ऑन गोइंग स्कीमें हैं, उनके ज़्यादातर के फंड्स रिलीज़ हो चुके हैं और उसमें नियर कंप्लीशन है, तो होपफुली उसमें सर्विस डिलीवरी में और बेहतरी आएगी। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर ने जेल में कायम अस्पताल का विजिट करवाया। सेक्रेटरी हेल्थ इमरान सिकंदर ने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट किया। उनका कहना था, जेल के अस्पताल में लेबॉर्ट्री, अद्वियात समेत मेडिकल की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने जेल में टेवटा और सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट का विजिट किया, जहाँ कैदी खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जा रहे थे। इस एक ख़ास जेल के बारे में हम लाहौर में भी सुनते रहे कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ। एक पूरी अस्पताल के अंदर लेबॉरेटरी इस्टेब्लिश की गई, इसका क्रिटिकल केयर का एक छोटा सा वार्ड बनाया गया, उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन और मुख्तलिफ मशीन्स लगी, और ये सारे काम जेल इंतज़ामिया ने ख़ास तौर पर जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं अली अकबर, इन्होंने अपनी ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करके अपनी ज़ाती काविशों से किया। सेक्रेटरी साहब ने जैसे आज इरशाद फरमाया कि हम एक ट्रेसर स्टडी करें उनके हवाले से, और हमने उनको, हमारी पूरी टीम ने एश्योरेंस दी है जी कि हम विद इन 2 वीक्स हमारी जितनी भी खवातीन जिन्होंने ये सारी स्किल्स ली हैं ट्रेसर स्टडी करके, उनका इंशाल्लाह डाटा हम कंपाइल करेंगे और उसको शेयर भी करेंगे। सेक्रेटरी हेल्थ इमरान सिकंदर की जेल इंतजामिया को टेक्निकल कोर्सेज के बाद सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर का कहना था, कैदी खवातीन को सिलाई, फाइन आर्ट्स और ब्यूटिशियन के कोर्स भी करवाए जाते हैं, ताकि वो यहाँ से बाहर जाकर जराइम की बजाय बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद के शहरियों को अब मिलेगा फ्रेश फूड उनकी दहलीज पर। फूड स्टैंड ने ऑनलाइन सर्विसेज का आगाज कर दिया है। डी ग्राउंड फैसलाबाद में ग्रैंड ओपनिंग की तकरीब फूड स्टेट के सरपरस्त आला मलिक अली मोहम्मद ने केक काट कर कंपनी का इफ्तिताह किया। शहरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके डिलीवरी सर्विसेज से मुस्तफीद हो सकते हैं। फैसलाबाद में शहरियों को फ्रेश फूड की फराहमी के लिए फूड स्टेट की जानिब से ऑनलाइन सर्विस का आगाज कर दिया गया। डी ग्राउंड फैसलाबाद में फूड स्टेट की ग्रैंड ओपनिंग तकरीब हुई, जिसमें फूड स्टेट के सरपरस्त आला मलिक अली मोहम्मद, ताजर रहनुमा राना सिकंदर और टीम मेंबर फैसल समेत दीगर ने केक काट कर कंपनी का इफ्तिताह किया। इस मौका पर कंपनी के ऑनर मलिक अली मोहम्मद का कहना था कि शहरियों की सहूलत के लिए फूड स्टेट कंपनी का आगाज किया है। शहरियों को इनकी दहलीज पर फ्रेश फूड मुहैया करेंगे। कंपनी सेल्स ऑफिसर फैसल समेत दीगर टीम मेंबर्स का कहना था कि ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए फूड समेत दीगर आइटम्स शहरियों को डिलीवर करेंगे। शहरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके डिलीवरी सर्विसेज से मुस्तफीद हो सकते हैं। हमारी जो स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर हम लोग जो है ना उनसे सब्सक्रिप्शन मॉडल ले रहे हैं, जैसा कि हम लोग जस्ट
2500 रुपीज़ ले रहे हैं, चाहे उनका 1 लाख रुपए का ऑर्डर जनरेट हो रहा है, चाहे उनका 5 लाख का हो रहा है, चाहे 2500 रुपये का हो रहा है, ठीक है। हम उनसे जस्ट 2500 रुपीज़ ले रहे हैं और टोटली स्मार्ट सोल्यूशन दे रहे हैं, जिसके अंदर हम प्री ऑर्डर दे रहे हैं, जिसके अंदर हम स्मार्ट रेस्टोरेंट दे रहे हैं। आप QR कोड स्कैन करेंगे और उनका जो रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की हमारा टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है इनसे, लेकिन हमारी डिलीवरी सेम है उनके साथ। हम लोग ऑर्डर्स करते हैं या हमारे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब ऑर्डर पेंडिंग में चला जाता है या ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, तो इसमें फूडस्टेड में जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कस्टमर्स या वेंडर्स को इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व आउट नहीं करना पड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर आता है दैन हम उसकी पहले कंफर्मेशन करते हैं, हमारा पूरा CS का डिपार्टमेंट जो है वो उसको कंफर्म करता है, दैन हम कस्टमर तक जो है ना वो ऑर्डर डिलीवर करवाते हैं। फूडस्टेड की ऑनलाइन सर्विस से शहरी घर बैठे फास्ट फूड्स में दीगर आइटम्स मंगवा कर वक्त और पैसा दोनों बचा सकते हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। चिनोट में हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 61वें उर्स का आगाज़ सज्जादा नशीन पीर महबूब इलाही नसीम ने चादर पोशी की और अकीदतमंदों की जानिब से अल्लाह का जिक्र भी किया गया। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। चिनोट में दरबार आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया मुहरबिया वादी अजीज शरीफ में हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 61वें उर्स मुबारक का आगाज हो गया। ज़ेब सजादा नशीन पीर महबूब इलाही नसीम ने अकीदतमंदों के हमरा चादर पोशी की। उर्स के मौका पर चिन्योट समेत गिरदोनवाह से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। अकीदतमंदों की जानिब से अहाते दरबार में जिक्र अज़कार की महाफिल भी जारी हैं। 3 रोजा उर्स की तकरीबात के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में शहीद होने वालों की याद में जंग इंतजामिया ने रैली निकाली और डिप्टी कमिश्नर समेत आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। शहरियों को आगाही दी गई। सानहा 8 अक्टूबर के शोहदा की याद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस झंग से रैली निकाली गई। क़यादत डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने की। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और DO रेस्क्यू अली हसनैन ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था रैली का मकसद 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के शोहदा को याद करना है। हर साल 8 अक्टूबर को हम ये डे मनाते हैं। इस डे को मनाने का बुनियादी मकसद तो ये है कि हम अपने जो शोहदा जिनका जानी और माली नुकसान हुआ था उनकी याद को ताज़ा रखें और उससे उस ज़लज़ले से एक हम सबक भी लें और एक रेजिलियंस का अपना एक मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा आज के दिन सानहात से बचने के लिए आगाही देते हैं। DO रेस्क्यू अली हसनैन का कहना था 2005 में हमारे पास इमरजेंसी सर्विस नहीं थी जिसके बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक्सीडेंट हुआ, डिजास्टर हुआ तो हमारे पास कोई ऐसी एजेंसी मौजूद नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास एक इदारा मौजूद है जो कि किसी भी डिजास्टर में, किसी भी हंगामी सूरत हाल में लोगों की मदद के लिए शाना बशाना लोगों के साथ खड़ा है। अली हसनैन कहते हैं पंजाब में रेस्क्यू सर्विस मौजूद है जो इमरजेंसी में भी भरपूर काम करती है। अगर ऐसा सानहा हो तो घबराने की बजाय लोगों की मदद करनी चाहिए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ तैयब सैफ, झंग। टोबा टेक्सिंग में 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के शोहदा की याद में सिविल डिफेंस की जानिब से तकरीब और वॉक का एहतमाम किया गया। MPS सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। टोबा टेक्सिंग में 5 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले में शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें MPS सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक, कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर बुखारी, चेयरमैन सिविल डिफेंस मियां इम्तियाज, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी राजा आरिफ समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। इसके अलावा सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस जवेद अकरम, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल खावर शेरगादी समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थी। शुरका का कहना था कि 8 अक्टूबर 2005 का दिन तारीख का स्याह-तरीन दिन है जब ज़लज़ले ने तबाही मचा दी थी। शोहदा के जो लवाहकीन हैं उनके साथ अज़हार यकजहती करने के लिए आज का एक प्रोग्राम अरेंज किया गया है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें एक ही मकसद है कि इंसानियत की खिदमत। आज का दिन उन शहीद होने वालों को खराज तहसीन पेश करने के लिए और पूरी कौम को आगाही देने के लिए है कि खुदा न खास्ता कभी ऐसे हादसे हों तो उनमें हमें जो मर्जी से उनका मुकाबला करना है और इंसानियत पे जो भी हालात में उसके काबू पाना है। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर बुखारी और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल खावर शेर का कहना था कुदरती आफत से निपटने के लिए भरपूर काम किया गया। उनको हम ये अवेयर करना चाहते हैं कि जो कुदरती आफत है उनका हमने मिलजुल के मुकाबला करना है। तो यही मेरा मैसेज है
کہ ہم جو ہے نا اپنی تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس طرف جو مرکوز ہوتی ہیں ان کو ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ کریں اور مل جل کے اس پہ کام کریں. سب دوست ہم یہاں پر جمع ہیں کہ یکجہتی کے لیے کہ اس کو اویئرنیس بڑھائیں اسکول لیولز کے اوپر، اور گورنمنٹ کے سارے آفیشلز جو ہیں ان کو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے ان کے اندر اویئرنیس کو اور بڑھائیں. تقریب کے اختتام پر آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا جو تحصیل آفس سے لے کر ڈی سی آفس تک نکالی گئی. 8 اکتوبر 2005 کا وہ دن جب پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ہولناک زلزلہ آیا، جس کی یاد میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور آنے والے دنوں میں ضلع میں بہترین کام کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں. کیمرہ مین جوار ملک کے ہمراہ شاہد محمود ٹوبہ ٹیک سنگھ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت